ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗ ਮਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ। कि मुझे कोई मार देगा, और अपने लोगों से ही मैं डर रही हूँ, खाना खाने में डर रही हूँ। जो हमारे सबसे नज़दीक है, हम लोग उनका नाम भी नहीं ले सकते। साधु बाबा के मुंह पे मारा। साधु बाबा ने कुछ नहीं बोला, हाथ माथा झुका के, सिर झुका के, और वहां से चले गए। उसके बाद वो लड़का और लड़की ऊपर चले गए, दोबारा से ऊपर जाने लगे। तो उसके बाद वो आके थोड़ी दूरी आगे आके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा। सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी, रूहानी आंटी नू मेरा जय गुरु जी। पहला मैं अपना मंत्र जाप करदी हां। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं छोटियां जी 2 लाइनां अपने भजन दियां रखदी हां। तसब्बीर में डूबा हुआ हूँ तुम्हारे, यहाँ जी रहा हूँ मैं तेरे सहारे। तसब्बीर में तस्वीर तेरी बना कर, निगाहों में दिल में उतारा करूँगा। मुझे जिस हाल पे रखोगे भगवन, उसी हाल में मैं गुजारा करूँगा। सुनो ना सुनो जे है मर्जी तुम्हारी, मगर मैं हमेशा पुकारा करूँगा। जय गुरु जी। संगत जी अज सोमवार का दिन, महाशिव का दिन है। मैं अपना छोटा जिहा सत्संग लेके आई हाँ गुरु चरणों दे विच। मैं जिस दिन दी गुरु महाराज ने चरणों दे विच मैं बेनती की सी कि मेरी मतलब कि जिहड़ी स्पेस आई है, लत्त बिल्कुल ठीक हो जाए, मैं मेडिसिन नहीं लैनी, मैं डॉक्टर दे नहीं जाना। गुरु महाराज जी मेरे ही वैद डॉक्टर तुसीं हो। संगत जी गुरु महाराज ने मेरे ते बहुत मेहर की है, बहुत मेहर की है। मैं दस नहीं सकती, वो मेरे को शब्द नहीं है जिन्हां नाल मैं बयान करा। संगत जी जिहड़े घर च मैं तुहानूं कल दस्सिया सी आंटी दे मैं सत्संग करन जाना वै, तां उत्थे मैं गई सी कल ऐतवार 2 ਤੋਂ 5 ਉਹਨਾਂ सत्संग सी। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਂਟੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਏ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜਰਾ ਵੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੱਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਂਟੀ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।
ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਾਈਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਲੰਘਾਈਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਵਾਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵਾਂ। ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਡੇਲੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ 'ਚ ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਏਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਹਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਹਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਵੈ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਇੰਨੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਐ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਲਸ ਪਾਈ ਰੱਖਣੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ। ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਵਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਾਉਣਾ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਪਵੇ, ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਵਧਾਓ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਓ, ਹਰ ਪੱਲੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਘਰ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਆਵੇ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਸੰਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 2 ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਹ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਸੰਗਲ ਖੋਲ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੋ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ, 2 ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮੱਖਣ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਂ ਚੋਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗ ਮਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੱਤੋ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਲਾਲਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਭ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ।
ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਬੁੱਧੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਈਓ, ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਓ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਦਈਓ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਪਲ ਪਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਈਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਹਾਣੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी रूहानी आंटी और गुरु प्यारी सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और बहुत दिनों बाद गुरु महाराज की कृपा से मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझे कम से कम 3 से 4 महीने और मे भी उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा कि मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर सकी। करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाती थी। पता नहीं कौन सी चीज़ थी जो मुझे रोकती थी। और ये जो है मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है लास्ट मंडे का, जब अचानक ही मुझे खाटू श्याम जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जबकि संगत जी, जब से मैं गुरुपा ने मुझे जब से अपने से जोड़ा है, तब से मैं किसी को भी नहीं मानती। गुरुद्वारे, मंदिर सबको मानती हूँ, मतलब कि, लेकिन जहाँ भी जाती हूँ मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कई दिन से खाटू श्याम जी के जैसे इंस्टा अपन लोग चलाएं, मेरे सामने चित्र आ रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि वहाँ पे भी मैंने देखा और एक मतलब कि मैं स्वाइप करती थी, जो बात सच है। यूनिवर्स के बहुत से मैसेज आते हैं वहाँ पे, जैसे कहते हैं कि लिखो कि थैंक यू यूनिवर्स। मैंने वहाँ पे लिखा कि मेरे यूनिवर्स मेरे गुरु महाराज है, शुक्राना गुरु जी, यही करके लिखते थे। लेकिन जैसे वो बोलते हैं ना, हारे का सहारा शाम हमारा, बाबा शाम हमारा, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे मुझे कई दिन से इंट्यूशन हो रही थी। अचानक ही मंडे के दिन हमारे कुछ नेबर्स हैं जो कह रहे हैं कि खाटू श्याम चलते हैं। वो बाहर से आए हुए हैं और मैं दिल्ली से ही हूँ। तो मैंने बोला कि कभी मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहोगे तो हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों ने सुबह सुबह प्रोग्राम बना के हम लोग चले गए और ऑटो किया हमने। जिस ऑटो से हम गए, जैसे हम वहाँ पे उतरे, तो उतरने बाद जब मैंने पेमेंट किया तो उन्होंने बोला कि मैं आपको वीआईपी पास देता हूँ। वो थोड़े बुजुर्ग थे जो ऑटो चला रहे थे। मैंने कहा वीआईपी पास, उसके लिए कुछ पे करना है? बोल रहे कि नहीं नहीं, आप लोग वीआईपी हो तो वीआईपी दर्शन करो। तो मेरे दिमाग में एकदम आया कि ये मेरे गुरु महाराज हैं जिन्होंने मुझे भेजा, और अपनी संगत का गुरु महाराज जी ध्यान तो रखते ही हैं। तो फिर मैंने कहा कैसे करेंगे? कह रहे कुछ नहीं करना, ये पास आपके फ़ोन में भेज रहा हूँ। उन्होंने मेरा नंबर लिया और मुझे वो जो आईडी थी उन्होंने मुझे सेंड की और बोल रहे जाके दर्शन करो। संगत जी, इतने अच्छे और इतने खुले दर्शन हुए और बिल्कुल वीआईपी की तरह गए। ये बात बिल्कुल सच है कि गुरु महाराज अपनी संगत के साथ हर समय रहते हैं। और जब मैं घर से निकल रही थी ना, मैंने बोला गुरु पास जा रही हूँ, सबके साथ जा रही हूँ, आप ही लेके जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं है, साथ साथ रहना। और जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना संगत जी, वहाँ पे गुरु महाराज की गाड़ियाँ नहीं मिलती, लेकिन मेरे आगे आगे एक गाड़ी थी जिस पर 555 लिखा हुआ था नेम, उसकी नंबर प्लेट पे, और ऊपर लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। और जब हम वहाँ पे पहुँच के जब उतरी तो एक गाड़ी और मेरे आगे आके रुकी, उसके ऊपर लिखा हुआ था जय गुरु जी। तो इसका अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। हम इस काबिल तो नहीं, लेकिन आपने हमें इस काबिल बनाया, के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग हो रहा है मेरी कमर में लगातार 3 से 4 दिन से बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। मतलब कि हल्का हल्का जैसे मीठा मीठा दर्द होता है ना, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो लेकिन वो जब दर्द थोड़ा बढ़ा तो हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं ना कि ये दर्द किस तरीके का है।
तो उसके बाद मैंने डॉक्टर से भी पूछा, तो डॉक्टर ने बोला अगर ये यहाँ पर हो रहा है तो पथरी का दर्द हो सकता है। तो मैं डर गई, मैंने कहा गुरुपा किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, कुछ नहीं करना, जो कुछ करोगे आप ही करोगे। और उसी दिन शाम को मैंने सत्संग सुना रूहानी आंटी के चैनल पे, मोनिका आंटी का जो सत्संग आता है, उन्होंने भी बैक पेन के बारे में बताया था। तो मैंने अरदास भी की, गुरु महाराज इस दर्द को आप ही ठीक करोगे, ना तो मैं किसी डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ। हाँ, मैंने एक पेन किलर जरूर ली थी गुरु महाराज जी के आगे खड़े होकर उनके जल प्रसाद से। और उसके बाद जैसे मोनिका आंटी बताती है ना कि वो जो गुरु जी की जोत में वो घी रह जाता है, मैंने वो जोत जलाई थी, उसके 1 मिनट बाद ही मैंने उसमें से घी लेके और इस पे लगाया मैंने अपने बैग पे। आप मानोगे नहीं संगत जी, लेकिन जो लोग जानते हैं गुरु महाराज जी को, जो विश्वास करते हैं, जिन्होंने सरेंडर कर दिया, वो लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। विदिन 10 मिनट में अपना काम कर रही थी, जैसे घर में ड्यूटी से आके काम करते हो, खाना बनाना ही बनाना, उठना बैठने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मेरे को 10 मिनट बाद ही मुझे लगा अरे इसमें दर्द नहीं है। फिर मैं दोबारा बैठी और उठी, बिल्कुल दर्द नहीं था। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना महाराज। ये हमारा जो जैसे घी लगाया जोत का, चंदन प्रसाद लगाते हैं हम लोग जल प्रसाद में मिला के, तो ये सिर्फ ट्रस्ट से होता है। ये एक भरोसा है कि गुरु महाराज ने ही सही करना है। अगर जब आप ये सोच के करोगे ना ये काम, तो ये होगा ही होगा, सच होगा ही होगा। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना महाराज। आपकी कृपा से मुझे कुछ बातें गुरु महाराज कह रहे हैं कि किसी से शेयर अभी नहीं करनी है, लेकिन वो गुरु महाराज को मालूम है और मुझे मालूम है कि मुझे इतना गिराने की कोशिश की है, और मेरे खुद के ही लोग हैं जो मुझे खींचतान कर रहे हैं। और गुरु महाराज जी के नवंबर में मुझे इतने मैसेज आए कि तेरे ऊपर फिर से तांत्रिक क्रिया हुई है, वो लोग तेरे पीछे पड़े हैं, तूने नाम जप नहीं छोड़ना। सिर्फ एक यही हमें गुरु जी ने इतनी बड़ी सौगात दी है ना कि संगत जी, पिछले नवंबर में मैं बहुत परेशान रही। मतलब कि हर समय जैसे ऐसा था कि मुझे कोई मार देगा, और अपने लोगों से ही मैं डर रही हूँ, खाना खाने में डर रही हूँ। जो हमारे सबसे नज़दीक है, हम लोग उनका नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन गुरु महाराज जी ने और रूहानी आंटी चैनल पे जितने सत्संग आते थे ना, सुबह सबसे पहले सत्संग में बस स्टॉप पे खड़े हुए उसकी हेडिंग ही पढ़ पाती थी सिर्फ, लेकिन मैं प्रॉपर सत्संग नहीं सुन पाती थी। मतलब कि मैंने कहा महाराज मैं आपके हवाले, मैंने पूरे हाथ उठा के खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, गुरु महाराज बचा लो, जैसे रखोगे वो आप ही रखोगे, अब मेरे बस का कुछ नहीं, अब आप संभालो। नवंबर किसी तरह निकल गया। सत्संग जी, संगत जी और गुरु जी के इतने मैसेज आए कि ये नवंबर लास्ट तेरा परेशानियों का, दुख का, बीमारी का, तेरे दुश्मनों का सबका अंत करने वाला है। 30 तारीख के बाद, 30 नवंबर के बाद तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। देखो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हारी बीमारी हमारे साथ रहेगी और ऊपर नीचे भी होगा, लेकिन उसके लिए क्या है, गुरु जी कहते हैं कि हारना नहीं, मेरे बच्चों ने हारना नहीं। परेशानी आएगी लेकिन नाम जप करना है। अभी नाम जप से क्या होता है गुरु संगत जी, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, जितना मैं जुड़ी हूँ, और ये अब हम लोग सत्संग भी सुनते हैं, और मैं और भी बहुत कुछ अध्यात्म की कई चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं आजकल, जो मैं सुन रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। तो उससे क्या होता है कि जब हम नाम जप करते हैं ना, तो जो हमारे ईष्ट हैं, जो हमारे गुरु है, उस नाम जप से उनको ताकत मिलती है, उनकी उनको ताकत मिलती है, और वो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। तो जब हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो उसके लिए उनको भी ताकत की ज़रूरत होती है। तो उसी तरीके से नाम जप जो है ये इतना बड़ा वरदान है, और कलयुग का ये बहुत बड़ा वरदान है, और ये हर किसी को नहीं मिला है। हम बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं कि गुरु महाराज का हाथ हमारे सिर पे है, और जो हमें ये नाम की बख्शीश मिली है। हमारे घर में रहते हुए सब लोग कोई नाम नहीं ले रहा, कोई जाप नहीं कर रहा है, लेकिन हम सिर्फ कर रहे हैं। गुरु महाराज जी का मैसेज आता है कि अपने परिवार में सिर्फ तू ही है जो सत्संग भी सुनती है, और जो तेरे पूर्वज हैं वो तेरे से खुश हैं, क्योंकि जो तू कर रही है वो कोई नहीं कर रहा। तो वो मैं कैसे कर रही हूँ, मेरे औकात थोड़ी है कुछ भी करने की, नहीं, वो महाराज का हाथ मेरे ऊपर है, मेरे मालिक का हाथ है मेरे ऊपर। तो पूरे विश्वास के साथ आप गुरु महाराज जी को जब सरेंडर करते हो ना, तब आपके वो अपने आप आपके काम बनाते जाते हैं। हम लोग कहते हैं आज करो कल करो, नहीं, होगा जरूर, लेकिन टाइमिंग किसकी है, मेरे महाराज की टाइमिंग। और एक चीज़ मुझे और जो समझ आई वो ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि मैंने तो हनुमान जी को अर्जी लगाई, मैं तो शेरा वाली माता को बोल कर आई, मैं तो काली माता को बोल कर आई। तो संगत जी मैंने जितना पढ़ा है और समझा है, उसमें मैंने क्या समझा है कि एक गुरु है, अगर वो है तो हमारे हाथ की
जो लिखी हुई लकीरें हैं ना, वो भी बदलने की ताकत सिर्फ हमारे गुरु रखते हैं। अभी हम कैसे कह रहे हैं कि मैंने शेरावाली माता को जैसे अर्जी लगाई, तो उसके लिए कई बार कहते हैं कि 10 लोग लगा के थे, अरे 3 का काम बना और मेरा तो नहीं बना। तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे गुरु के हाथ में है। अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा है और हम गुरु जी को कहते हैं, हम कहने के, हमारे तो गुरु जी को कहने की भी जरूरत नहीं। अगर हम उनके आगे आंख बंद करके सिर्फ चुपचाप भी खड़े हो जाते हैं तो हमारे मन को पढ़ते हैं, उनको पता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो हमारी तरफ से वो हनुमान जी के पास जाते हैं, हमारी तरफ से वो महारानी महामाया शेरावाली मैया के पास, काली मैया के पास, खाटू श्याम जी के साथ वो जाते हैं और वो उनको बोलते हैं ये मेरा बच्चा है, ये मेरी संगत है, ये इस दिन तेरे पास आ रहा है, अब इसका कल्याण करो। क्योंकि जैसे हनुमान जी हैं, खाटू श्याम जी हैं, काली माता, सबके पास अपनी शक्तियाँ हैं। और वो शक्तियाँ हर किसी को जैसे शक्ति मिली हुई है ना, हर किसी के पास अपने, जैसे कोई इंग्लिश की टीचर है, हिंदी की टीचर है, तो सबके पास एक अलग अलग स्किल होती है। ऐसे ही इन सबके पास, महारानी महामाया के पास में, काली मैया के पास में, हनुमान जी के पास में, खाटू श्याम, सबके पास अपनी अपनी स्किल है। तो जो जिनके पास स्किल है वो उनको ही पता है कि उसका निवारण कैसे करना है। ठीक है, तो हमने गुरु महाराज जी को माना, हमने उनके आगे खड़े हुए हाथ जोड़ के ही अरदास लगाई, अरदास की हमने, क्योंकि हमने मांगना नहीं है, हमने मानना है। जब हम मानते हैं उनको, तो वो हमारी अरदास को, उनको अच्छे से पता है मेरे को क्या देना है, तो वो हमारी तरफ से उनके पास जाते हैं कि आज मेरा बच्चा तेरे पास आ रहा है। जैसे सपोज मैं मानती नहीं हूँ खाटू श्याम जी को, जो बात सच है, लेकिन अगर मेरा बच्चा तेरे पास आ रहा है और उसका निवारण करना, वो कहेंगे ठीक है जी भेजो। तो कैसे गए, मैं गई भी, मुझे वीआईपी दर्शन भी हुए, और उसके बाद फिर मेरे पास उस, वो जो ऑटो ड्राइवर थे उनका फ़ोन आया मेरे को जब मैं घर आ गई अपने 4 से 5 बजे के बीच में, कि हाँ जी दर्शन हो गए। मैंने कहा हाँ जी आपकी कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हुए, वीआईपी दर्शन हुए। तो मैंने कहा ये जो पास मेरे पास है इसके, इसमें हम दोबारा भी दर्शन कर सकते हैं? कहते हैं हाँ, हर किसी को संगत को करवाओ जो तुम्हारे से जुड़े हैं, तुम्हारे भाई बहन या कोई भी। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो इसीलिए सिर्फ समर्पण कर दो, गुरु जी का, महाराज का नाम लो, मंत्र जाप करो। अभी मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि अब संकट कटने वाले हैं, हनुमान चालीसा 21 दिन तक पढ़नी है। ये हमारी ब्लेसिंग्स होती है जो नहीं बतानी, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ। या तुम्हें काली मैया का पाठ करना है, या तुम्हें ये करना है, तो उसको ऐसे ही मत समझो। वो हमारे लिए एक निर्देश होता है जिसका हमें पालन करना होता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रोकती हैं, नहीं करने देती हैं। लेकिन अगर हम करना चाहते हैं, मंत्र जाप ही हम लोग करेंगे, मंत्र जाप से ही हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो उसके लिए मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है और काफ़ी दिन बाद है, लेकिन एक छोटी सी कहानी है जो मेरे को अभी थोड़े दिन पहले ही, मैंने कहा ना अध्यात्म की कुछ चीज़ें अपने आप मेरे सामने आ रही हैं जो मैं पढ़ रही हूँ, शायद महाराज मुझे को समझाना चाह रहे हो उनके द्वारा। तो एक कहानी मेरे सामने आई कि एक घर था, उसके स्टेयर से एक बहुत सुंदर सी लड़की उतर रही थी, वो वेश्या थी वो, और वो उतर के आ रही थी। तो उसके साथ ही सामने से एक साधु बाबा आ रहे थे। तो जब वो उतर रही थी तो उसके पीछे पीछे एक लड़का भी उतरा। तो जैसे साधु बाबा ने ऐसे हाथ जोड़ के, हाथ जोड़े, भाई कुछ खाने को है तो दे दो। तो जैसे वो आ रहे थे ना, तो आगे कीचड़ था, उनको देखा नहीं, तो उस कीचड़ में महाराज का, साधु महाराज का पैर पड़ा और सारा का सारा जो कीचड़ था वो उसके ऊपर, जो वेश्या थी जिसे सुंदर सी ड्रेस पहनी थी ना, उसके ऊपर गिर गया। तो उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे गलती से हुआ। लेकिन वो जो लड़का उनके साथ में था ना, उसके साथ में, उसने बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ उस साधु बाबा के मुंह पे मारा। साधु बाबा ने कुछ नहीं बोला, हाथ माथा झुका के, सिर झुका के, और वहाँ से चले गए। उसके बाद वो लड़का और लड़की ऊपर चले गए, दोबारा से ऊपर जाने लगे। तो उसके बाद वो आके थोड़ी दूरी आगे आके बैठे थे कि एक चाय की दुकान थी, वो चुपचाप वहाँ से निकल रहे थे। तो जो चाय बना रहा था भैया, उन्होंने बोला बाबा चाय पियोगे? उन्होंने बोला पिला दो महाराज। तो कुछ खाओगे? कह रहा जैसी गुरु की इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा। उसने एक उनको रस भी दिया खाने को। अभी वो बैठे ही थे तो एक आदमी पीछे से भागता हुआ आया, जो उस समय वहां पर था जब वो कीचड़ में पैर पड़ा था और उनको थप्पड़ मारा था, ठीक है ना। तो उसने तुरंत उसको बोला महाराज अभी जो पीछे और एक वो जो लड़की थी जिसके ड्रेस पे आपसे कीचड़ पड़ा था, तो क्या आपने उनको बद्दुआ दी थी? कहते मैं क्यों बद्दुआ दूंगा, मेरी तो गलती हुई थी, मैंने माफ़ी मांगी। कहते नहीं नहीं, वो ना ऊपर चढ़ रहे थे, तो वो जब वो ऊपर चढ़े ना, वो लड़का और लड़की दोनों, वो छत गिर पड़ी जबकि वो इतनी पक्की थी, और वो दोनों उसमें गिर के ख़त्म हो गए। तो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, वो जो ऊपर बैठा है ना मेरा सपोर्टर, क्योंकि उस लड़की का सपोर्टर वो था, उसने आके मेरे को थप्पड़ मारा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन वो भूल गया
कि जो मेरा सपोर्टर है ना, वो कैसे अपने बच्चे को मार खाने देगा। तो उसका वो इंसाफ था, उसने उनको ख़त्म कर दिया। तो सिर्फ एक छोटी सी बात ये है कि कितनी बड़ी ताकत है नाम जप में और एक शक्ति को मानने में। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, हमें गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है जब हमारे से कोई बुरा कर रहा है और हमें पता होता है कि ये हमारे लिए गलत बोल रहा है, ठीक है, कर रहा है, फिर भी छोड़ दो। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, जो मेरा जवाब होगा उस जवाब के मुकाबले कोई जवाब नहीं होगा। महाराज के इतने पॉजिटिव मैसेज इस समय मुझे आ रहे हैं 1 दिसंबर से कि जिन्होंने तुझे रुलाया अब उनके रोने के दिन आ गए, जो अपने जाल में खुद ही फंस गए हैं। मैंने तेरी एक एक रात को तेरे को रोते देखा है, तेरे को अपनी मेरे को अरदास करते देखा है। तो मेरे बच्चे, तू मेरी हर परीक्षा में पास हुई है। तो सिर्फ हमें महाराज की परीक्षा में पास ही होना है, और हम कहीं भी जाते हैं, कोई हमारे से कैसा व्यवहार करता है कैसा नहीं, हमें उसको बहुत हिसाब से, जबकि उस समय वो मैं मानती हूँ, मैं खुद भी मानती हूँ क्योंकि मैं गुस्सा कर जाती हूँ, वो नहीं हम टॉलरेट कर पाते और बोल पड़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब से नाम जब चल रही है, ये इस परेशानी में से हम निकल रहे हैं ना, ये हमारा एक तरीके से हमें एक लेसन सिखाया जा रहा है कि तुम क्या थे और दुनिया क्या थी, सुनो समझो। उसके बाद हमारा नया चैप्टर शुरू होता है। तो महाराज हमें इसमें जब हम मुसीबत में डालते हैं ना, तो निकालते भी वही हैं, सिर्फ हमें सिखा के। तो सिर्फ सब लोगों से, सारी संगत जी से मैं यही कहूँगी कि कुछ मत करो, परेशानी दिक्कत आती है। आज मैंने एक सत्संग और सुना था जिसमें किरण आंटी जी थे, शायद नाम किरण आंटी जी था। तो उसमें उन्होंने बताया कि उनके घर में कोई लेडीज़ आके बैठ गई थी उनके बेड पे, और वो ऊपर थी। ये बहुत गलत बात है, ये मुझे भी बुरा लगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। तो मेरे मन में कई तरह के विचार आते हैं, गलत भी आते हैं, भाई मैं नहीं थी तो ये कैसे आके बैठी, अभी कुछ कर ना दे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और गुरु जी महाराज ने मुझे सबकी शक्लें भी, मतलब कि इंडिकेशन भी दी हैं कि वो ऐसा है और वैसा है। तो इसमें कुछ गलत नहीं था, और हम गुरु महाराज जी के आगे कह के ना हमें शांत हो जाते कि अब उनको कह दिया है ना। तो ये जो सत्संग हमें गुरु महाराज जी सुनाते हैं ना, इसमें हमारे कष्ट तो कटते हैं, हमें और भी कई इंडिकेशन देते हैं कि जो तू सोच रही है उसका मतलब ये है, ये ऐसा हो रहा है, मैं निवारण करूंगा। तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगी, महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर दिन का शुक्राना है। जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे हो उसका भी शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोक के फिर दोबारा से आऊँगी और महाराज से अरदास करूँगी कि मुझे शुक्राना की दात बख्शो महाराज, कि मैं कर सकूँ। इतने टाइम तक, इतना टाइम मैं नहीं डाल नहीं, मतलब कि 4-5 महीने तक नहीं कर पाई, तो वो भी महाराज की मर्जी था। अभी बैठे बैठे एकदम से शुक्राना सत्संग करने लगी, ये भी महाराज की मर्जी है। तो इसमें मैंने कोई भी शब्द कुछ ऐसा बोला जिससे किसी भी संगत को बुरा लगा हो, या कोई शब्द ऐसा, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करना गुरु महाराज, आप भी, क्योंकि ये मैं बोल रही हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है। मैं तो सिर्फ एक खाटू श्याम जी का सत्संग करना चाहती थी, और इतना कुछ मैंने बोला, तो ये आपकी मर्जी के बगैर नहीं बोल सकती हूँ महाराज। इसलिए अपनी कृपा सब पे बनाए रखो, सारी संगत पे बनाए रखो, सबके रुके हुए काम बनाओ महाराज। भोले भाले बच्चे हैं आपके, हर छोटी छोटी सी बात से डर जाते हैं। दुनिया बहुत चालाक है महाराज, ये आपने मुझे सिखा दिया। भोले भाले जीवों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, बस आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। और रूहानी आंटी, आपका भी अनंतम शुक्राना कि आप इतने अच्छे अच्छे सत्संग हमें शेयर करती हैं, अपना इतना वैल्यूबल टाइम निकाल कर हमारे सत्संग शेयर करती हैं। हाँ, एक बात और, जो नवंबर में मैं रूहानी आंटी के सत्संग नहीं सुन पाई ना, वो सारे मुझे 1 दिसंबर से सारे सत्संग आए संगत जी, एक एक करके, जो समय मैं नहीं सुनी, जिसमें कि तेरे ऊपर नेगेटिविटी है, तांत्रिक क्रिया की गई है, जितने भी। और अब दिसंबर में मैं सारे सत्संग सुने। तो ये एक टाइमिंग है, उस समय मुझे इंडिकेशन मिल रहा था, लेकिन वो शक्ति, शायद वो जो नेगेटिविटी थी वो मुझे नहीं करने दे रही थी, लेकिन अब वो टाइम था और मैंने सुने, और वो कार्ड तो गुरु महाराज जी ने उस समय भी दी होगी, लेकिन इस समय उनका पूर्ण, उसका समाप्ति भी आ गया है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। ओम नम। अब मैं गुरु महाराज के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहाँ रोक के दोबारा से आऊँगी, ठीक है। अब सारी संगत मेरे साथ बोले, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
हर पल का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।